کوہاٹ میں بھی روزے عاشور کے ماتمی جلوس اپنے روایتی راستوں پر رواں 3 امام بارگاہوں سے نکالے گئے جلوس شام نماز مغرب کے بعد زیارت سید علیم شاہ غازی پر اختتام پذیر ہوں گے۔ مزید احوال جانتے ہیں عبدالباسط کی اس رپورٹ میں۔ نواز رسول حضرت امام حسین کی عظیم قربانی کو برسہ دینے کے لیے کوہاٹ میں بھی علم و ذوالجناح و تعزیہ کے ماتمی جلوس برآمد ہو چکے ہیں۔ حسین نے جو درس دیا ہے وہ امن کا درس حسین کی وجہ سے، کیونکہ یزیدیت کا پرچار جو ہو رہا تھا اس میں حسین نے بتایا کہ ماں کیا ہے، بہن کیا ہے، باپ کیا ہے۔ انہوں نے رشتوں کی پہچان کرائی۔ آج اگر ہم اپنے گھروں میں مطمئن ہیں تو یہ حسینیت کی وجہ سے ہے۔ شہر کے 3 بڑے امام بارگاہوں سے نکالے گئے ان ماتمی جلوسوں میں انجمن در بطول، دستے حسینی، دستہ رضویہ کے دستے سینہ کو بھی کرتے ہوئے زہرا کے لال کو برسہ دے رہے ہیں۔ یہاں پہ انجمن در بطول ماتمی دستے، دستہ حسینی اور دستہ رضویہ، یہ ماتمی دستے ہیں جو جلوسوں کو چلا رہے ہیں، اور ساتھ میں سیکورٹی کے جو دستے ہیں وہ انجمن رضویہ اور مختار فورس ہیں۔ نکالے گئے ماتمی جلوسوں کے لیے رضاکار اور امن کمیٹی کے ممبران نے بھی سبیل علی اصغر اور نظر و نیاز کا اہتمام بھی کیا ہے۔ عبدالباسط، آن نیوز، کوہاٹ۔ حب عاشورہ کا مرکزی جلوس امام بارگاہ بخاری اکرم کالونی سے برآمد ہو کر اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا امام بارگاہ حسینی جام کالونی میں اختتام پذیر ہو گیا، جہاں رات گئے تک مجلس کا سلسلہ جاری رہے گا۔ پولیس کے ہمراہ محکمہ صحت کے ایمبولینس سمیت ڈاکٹر اور پیرامیڈیکل سٹاف کو بھی تعینات کیا گیا۔ جلوس کی سیکیورٹی کے لیے ضلعی انتظامیہ نے 400 سے زائد پولیس اہلکاروں کی ڈیوٹیاں لگا رکھی ہیں، جبکہ اے ٹی ایف اور ایف سی کے اضافی دستے بھی سیکیورٹی پر مامور ہیں۔ جلوس کی سیکیورٹی کی نگرانی ایڈیشنل ایس پی سبیلہ صدام حسین خاص کیلی اور اسسٹنٹ کمشنر حب محمد احمد ظہیر کر رہے ہیں۔ چکوال میں معمولی بات پر جھگڑا، 3 افراد زخمی، ہسپتال منتقل۔ تفصیلات کے مطابق چکوال لکھوال لڑائی جھگڑے کی اطلاع پر ریسکیو کنٹرول روم نے ایمبولینس روانہ کی۔ شفٹ انچارج عاشق حسین نے بتایا کہ ایک خاتون سمیت 3 افراد زخمی ہوئے۔ ماموں بھانجے کے درمیان ریڑہ گزارنے کی معمولی بات پر جھگڑا ہوا، جس میں کلہاڑیوں کا استعمال بھی کیا گیا۔ ریسکیورز نے ابتدائی طبی امداد مہیا کرنے کے بعد DHQ اسپتال چکوال منتقل کر دیا۔ حافظ آباد کالی کی منڈی یوم عاشور کا مرکزی جلوس لکھی شاہ سے برآمد ہو کر امام بارگاہ قصر بطول میں پہنچ کر اختتام پذیر ہوا۔ جلوس کی سیکیورٹی کے لیے فول پروف انتظامات کیے گئے تھے۔ جلوس کے راستوں سے ملنے والے تمام راستے سیکیورٹی کے پیش نظر خاردار تاریں اور ٹرالیز لگا کر بند کیے گئے تھے۔ پولیس کے ساتھ ساتھ CTD اور سول سیکیورٹی کے اہلکار بھی جلوس کی نگرانی کے لیے تعینات تھے۔ جلوس کے راستوں پر جگہ جگہ پانی اور دودھ کی سبیلوں کا انتظام تھا۔ جلوس کے شرکاء نے مرکزی امام بارگاہ پہنچ کر ماتم اور زنجیر زنی بھی کی۔ ملک بھر کی طرح چھانگا مانگا میں بھی 10 محرم کا دن انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ شہریوں کی کثیر تعداد نے شہر خاموشہ کا رخ کر لیا۔ مزید تفصیلات لیتے ہیں طاہر اصغر انصاری سے۔ یہ طاہر آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، ملک بھر کی طرح چھانگا مانگا میں بھی 10 محرم کا دن انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ میں اس وقت موجود ہوں چھانگا مانگا کے مقامی قبرستان میں۔ شہریوں کی کثیر تعداد نے شہر خاموشہ کا رخ کر لیا ہے، اپنے پیاروں کی قبروں پر پھولوں کی پتیاں اور اگربتیوں کی خوشبو سے معطر کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن خوانی کی تلاوت بھی کر رہے ہیں۔ جب اس حوالہ سے میری شہریوں سے بات ہوئی تو شہریوں کا کہنا ہے کہ ہم اپنے پیاروں کی قبروں پر دعائیں مغفرت کر کے ہمیں روحانی اور قلبی سکون حاصل ہوتا ہے۔ مزید شہریوں کا کہنا ہے کہ چھانگا مانگا قبرستان کی حفاظت کے لیے سیروں پہ 4 دیواری بھی کروائی جائے۔ جی گوجرانوالہ میں یوم عاشورہ کا مرکزی جلوس امام بارگاہ گلستان معرفت کالج روڈ سے برآمد ہوا۔ جلوس میں سینکڑوں عزادار ماتم اور نواخوانی کر رہے ہیں۔ شیعہ اور ذوالجناح کا مرکزی جلوس اپنے مقررہ راستوں پر گامزن ہے۔ جلوس میں شامل عزادار چوک گھنٹہ گھر پہنچ کر نماز ظہرین ادا کریں گے۔ نماز ظہرین کی ادائیگی کے بعد زنجیر زنی کی جائے گی۔ جلوس اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا واپس امام بارگاہ گلستان معرفت پہنچ کر اختتام پذیر ہوگا۔ پولیس کی جانب سے جلوس کے روٹس پر سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کیے گئے ہیں۔ جلوس کے راستوں میں آنے والی گلیوں کو کناتیں اور خاردار تاریں لگا کر بند کر دیا گیا ہے۔ مرکزی جلوس کے روٹس میں آنے والی بلند عمارتوں پر بھی سیکیورٹی اہلکار اور سنائپر تعینات ہیں۔ جلوس میں داخل ہونے والے شرکاء کو سخت چیکنگ کے بعد داخلے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ ایلیٹ فورس، بم ڈسپوزر اسکواڈ اور ریسکیو ٹیمیں بھی جلوس کے ہمراہ ہیں۔ جلوس کی مانیٹرنگ کے لیے CPO اور DC آفس میں کنٹرول روم بھی قائم کیے گئے ہیں۔
یوم عاشورہ پر شہریوں کی بڑی قبرستانوں میں تعداد موجود ہے. شہری اپنے پیاروں کی قبروں پر مٹی ڈال رہے ہیں اور فاتحہ خوانی کر رہے ہیں. شہریوں کی جانب سے قبروں پر پھول چڑھائے جا رہے ہیں. شہری اپنے پیاروں کی مغفرت کے لیے دعائیں اور تلاوت بھی کر رہے ہیں. سیالکوٹ میں 10 محرم الحرام کا مرکزی جلوس امام بارگاہ در بطول اڈا پسروریاں سے برآمد ہوا. جلوس اپنے مقررہ راستوں اڈا پسروریاں، اقبال روڈ، 2 دروازہ، کھٹیکاں بازار سے ہوتا ہوا چوک شہیداں پہنچے گا. جلوس میں کثیر تعداد میں عزاداروں نے شرکت کرنے کے ساتھ ساتھ نواخوانی اور سینہ زنی بھی کرتے رہے. جلوس 2:30 بجے دوپہر چوک شہیداں میں علامہ عابد علی عابد فلسفہ شہادت امام حسین علیہ السلام بیان کریں گے. چوک شہیداں سے یوم عاشور کا مرکزی جلوس بازار کلاں، لہانی بازار چوک، گرونڈی، چندر بازار سے ہوتا ہوا بہلول دانا پہنچے گا. 10ویں محرم کا مرکزی جلوس بہلول دانا کشمیری محلہ سے ہوتا ہوا نماز مغربین کے قریب چوک اڈا پسروریہ سے امام بارگاہ در بطول پہنچ کر اختتام پذیر ہوگا. جلوس کے اختتام پر امام بارگاہ در بطول اڈا پسروریہ میں مجلس شام غریباں ہوگی. مرکزی اور قدیمی جلوسوں کی نگرانی کے لیے 74 CCTV کیمرے لگائے گئے ہیں. کیمروں کی مانیٹرنگ DPO کنٹرول اینڈ کمانڈ روم سے کی جا رہی ہے. ضلع بھر میں برآمد ہونے والے 87 چھوٹے بڑے جلوسوں پر 2000 سے زائد پولیس اہلکار، ایلیٹ فورس کے جوان اور پولیس افسران اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں. کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے نمٹنے کے لیے جلوس کے داخلی اور خارجی راستوں پر پولیس کی بھاری نفری تعینات کی گئی ہے. جلوس کے متعلقہ راستوں پر خاردار تاریں اور کناتے لگا کر بند کیا گیا ہے. کوٹ ادم میں محرم الحرام کے حوالے سے تمام تر ادارے متحرک. ریسکیو 1112 آفس میں تحصیل انچارج عابد سلطان کی نگرانی میں شہداء کے لیے فاتحہ خوانی اور دعا کا اہتمام کیا گیا. دعا کے بعد تمام جوانوں نے اپنی اپنی ڈیوٹیاں سنبھال لیں. امام بارگاہ غازی عباس علمدار دائرہ دین پناہ، امام بارگاہ دایا چوکھا سناواں، امام بارگاہ نبی شاہ کوٹ ادو کے پوائنٹ پر ریسکیو اہلکار اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں. ہارون آباد میں 10ویں محرم الحرام کا ماتمی جلوس مرکزی امام بارگاہ سے برآمد ہو کر روایتی راستوں پر گامزن. سیکورٹی کے سخت انتظامات. جلوس سے ملکہ راستوں کو رکاوٹیں لگا کے بند کر دیا گیا. پولیس کی جانب سے سخت سیکورٹی کے انتظامات کیے گئے ہیں. جلوس سے ملکہ راستوں کو رکاوٹیں لگا کر آمد و رفت کے لیے بند کر دیا گیا. DSP سرکل ہارون آباد گل حسن، اسسٹنٹ کمشنر چودھری محمد طیب اور SHO تھانہ سٹی ابصار حسین گجر اور SHO صدر چودھری محمد بشیر اور SHO فقیر والی عابد حمیدہ اور سیکورٹی برانچ اور سول ڈیفنس کی سربراہی میں پولیس اہلکار جلوس کے ہمراہ ہیں اور جلوس کی نگرانی کر رہے ہیں. 10ویں محرم الحرام کا جلوس مرکزی امام بارگاہ سے برآمد ہو کر اپنے روایتی راستوں عقب جیل روڈ، فوارہ چوک روڈ سے ہوتا ہوا فوارہ چوک پہنچ چکا ہے، جہاں عزاداران نماز ظہرین ادا کریں گے اور مجلس عزا ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محرم الحرام کا جو مرکزی جلوس ہے 10 محرم الحرام کو اس وقت مرکزی امام بارگاہ سے برآمد ہو چکا ہے. جلوس کی سیکورٹی کے لیے فروغ سیکورٹی انتظامات کیے گئے ہیں. جو بھی گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے جو سیکورٹی کی SOPs جاری کی گئی ہیں، جو DP صاحب کی طرف جو انسٹرکشنز ہیں اس کے مطابق جو ہے سیکورٹی کے انتظامات کو انشور کیا گیا. جلوس کے راستے میں آنے والے تمام روٹس کو کنٹینرز اور خاردار تاروں سے بلاک کر دیا گیا ہے اور پوری کوشش ہے کہ جس طرح اس سے پہلے جو ہے نا جلوس بڑے اچھے طریقے سے بڑے منظم انداز سے اس کو جو ہے نا سیکیور کر کے بحفاظت واپس پہنچایا جاتا ہے، اسی طرح جلوس کو انشاءاللہ تعالی اس سال بھی کوشش ہوگی آج سے پہنچایا جاتا ہے. تھینک یو. روبر ٹیکسی میں 10 محرم الحرام کا مرکزی جلوس امام بارگاہ حسینیہ سے برآمد. جلوس میں مرد و خواتین عزاداران کی کثیر تعداد میں شرکت. جلوس روایتی راستوں سے ہوتا ہوا مرکزی امام بارگاہ میں اختتام پذیر ہوگا. جلوس کے اطراف میں رکاوٹیں کھڑی کر کے سیل کر دیا گیا. جلوس کے موقع پر سیکورٹی کے فول پروف انتظامات کیے گئے ہیں. DPO کا یہ کہنا تھا. ملک بھر کی طرح خیرپور ناتن شاہ میں بھی 10 محرم الحرام انتہائی عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے. خیرپور ناتن شاہ کے مختلف علاقوں سے 100 چھوٹے بڑے جلوس برآمدگی کا سلسلہ جاری ہے. مختلف علاقوں سے برآمد ہونے والے جلوس مرکزی امام بارگاہ سید پیر شاہ پر پہنچ کر مرکزی جلوس سے برآمد ہوں گے، جس کے بعد شہر کے مین روڈ پر باجماعت نماز ظہرین ادا کی جائے گی. نماز ظہرین کے بعد یوم عاشور کا مرکزی ماتمی جلوس شیخ ذوالجناح شبی تابوت و دیگر تبرکات کے ساتھ برآمد ہوگا. ماتمی جلوس اپنے مقررہ راستوں پر گامزن ہو جائے گا، جس کے بعد شہر کے مین روڈ پر نماز ظہرین ادا کی جائے گی. جلوس میں شریک عزاداران امام حسین
अलैहिस्सलाम की जानिब से सीना कोबी और जंजीर जनी भी की जा रही है। शबी जुलजना के साथ बरामद होने वाला मरकजी मातमी जुलूस शाम देर गए शाम गरीबा चौक पहुँचेगा, जहाँ शाम गरीबा बर्पा होगी, जिसके बाद जुलूस अपने रवायती रास्तों पर फिर से गामजन हो जाएगा और रात देर गए मरकजी इमाम बारगाह सैयद पीर शाह पर इख्तिताम पजीर होगा। इस वक्त जुलूस के रास्तों पर जगह जगह लंगरों न्याज और सबीलों का भी एहतमाम किया गया है। जुलूस की सिक्योरिटी के लिए पुलिस और रेंजर्स के एहलकार बड़ी तादाद में तैनात हैं। शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर रुकावटें डालकर आम ट्रैफिक के लिए सील कर दिया गया है। शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर भी पुलिस और रेंजर्स के भारी नफरी मुकर्रर की गई है। सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र मोबाइल फ़ोन की सर्विस भी जुज़वी तौर पर मुअत्तल है। यौम आशूर के सिलसिले में वज़ीराबाद के तीनों इमाम बारगाहों से मातमी जुलूस बरामद हुए। 131 साल कदीमी जुलूस मरकज़ी इमाम बारगाह काजी गालिब अली शाह से बरामद हुआ। दूसरा कदीमी और रवायती जुलूस मरकज़ी इमाम बारगाह मुहाजिरीन से बरामद हुआ। तीसरा जुलूस यौम आशूर इमाम बारगाह हुसैनिया अल-ज़हरा शाह सदक से बरामद हुआ। अज़ादारान इमाम हुसैन की कसीर तादाद जुलूसों में मौजूद नवाखानी और सीना जनी कर रही है। जुलूस के रूट से मुल्हिक रास्ते खारदार तारों और कनात वगैरह लगाकर बंद किए गए हैं। अज़ादारान के लिए न्याज़े इमाम हुसैन और सबील शोहदाए करबला शरबत के इंतजाम किए गए। जुलूस रात गए 11 बजे के करीब वापस इमाम बारगाहों में पहुँच कर इख्तिताम पजीर होंगे। पुलिस के मुस्तैद जवान सिक्योरिटी पर मामूर हैं। जुलूसों के इख्तिताम पर मजालिस शाम गरीबा बर्पा होंगी। रेस्क्यू 1122, सिविल डिफेंस, बम डिस्पोजल स्क्वाड, PTCL और महकमा सेहत का अमला भी जुलूसों के हमरा। सिक्योरिटी के इंतजाम पर इत्मीनान और पुलिस की ड्यूटी तसल्ली बख्श है। बानियानो लाइसेंसदारान। यौम आशूरा का मरकजी जुलूस शिकारपुर से भी बरामद हुआ। जुलूस अपने रवायती रास्तों पर रवाना हुआ। जुलूस में अज़ादारों की बड़ी तादाद में शिरकत, सीना कोबी जारी, या हुसैन की सदाएं बुलंद। SSP तनवीर हुसैन तनियों के मुताबिक अमन व अमान बरकरार रखने सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। अफसरान समेत 1900 से ज़ायद एहलकार फराई सर अंजाम देंगे। जिला भर में 10 मुहर्रम हराम में 188 छोटे बड़े मातमी जुलूस शामिल होंगे। पुलिस के साथ साथ रेंजर्स की भारी नफरी भी तैनात की गई है। जुलूस के तमाम दाखिली और खारजी रास्तों को सील कर दिया गया है। खबर शामिल करते हैं तौंसा शरीफ से हमारे नुमाइंदे सहेल अख्तर लालवानी की इस रिपोर्ट में। 10 मुहर्रम हराम तौंसा में मजालिस और जुलूस, सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। शरीफ मरकजी जुलूस के मौका पर शहर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए हैं। जुलूस की गुजरगाह और इतराफ की गलियों और सड़कों पर सिक्योरिटी के लिए पुलिस एहलकार तैनात किए गए और जुलूस की CCTV कैमरों से भी मॉनिटरिंग की जा रही है। तौंसा के तमाम जुलूस और मजालिस की सुपरविजन हसन जावेद भट्टी, SP इन्वेस्टिगेशन डेरा गाजी खान और ASP सर्कल तौंसा शरीफ मीर रोहल खान कर रहे हैं। इस मौका पर हसन जावेद भट्टी, SP इन्वेस्टिगेशन डेरा गाजी खान और ASP सर्कल तौंसा शरीफ मीर रोहल खान ने कहा है कि तौंसा पुलिस ने मशकूक अनासिर और सरगर्मियों पर नजर रखने के लिए शहर में गश्त बढ़ा दिया है और खुफिया दस्ते भी काम कर रहे हैं। मजालिस और जुलूस के दौरान कमांडो सिक्योरिटी की खिदमात भी हासिल की जा रही हैं। जड़ावाला में 10 मुहर्रम का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह कसरे बतूल से बरामद। सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजामात। मजीद जानते हैं जड़ावाला से अपने नुमाइंदे सैयद अदील हुसैन शिराजी से। जी अदील, बताइएगा। जी, पूरे मुल्क की तरह जड़ावाला पे भी 10 मुहर्रम हराम का जुलूस जो है मरकज़ी जुलूस तकरीबन सुबह 10 बजे मरकज़ी इमाम बारगाह कसरे बतूल से बरामद हुआ, जो कि अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ तकरीबन 1 बजे सैनमा चौक पहुंचा, जहां पर नमाज ज़ोहरैन अदा की गई। नमाज ज़ोहरैन के बाद शबी दुलजना हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बरामद हुआ। आज़ादरान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की काफ़ी ज़्यादा तादाद मौजूद है और जंजीर जनी और मातमदारी हो रही है। अगर मैं सिक्योरिटी के हवाले से बात करूं तो सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतज़ामात हैं। तमाम दाखिली व खारजी रास्तों को खारदार तारें लगाकर बंद कर दिया गया है और सिक्योरिटी के तकरीबन 300 मुलाजिम जो हैं वो ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। 1122 और रेस्क्यू वाले अंजाम दे रहे हैं। जी, अब रुख करते हैं पाकपतन का, जहां पर पंजाब के दूसरे शहरों की तरह पाकपतन के कब्रिस्तानों की रौनकें भी बहाल हो गईं। शहरी अपने प्यारों की कब्रों पर कुरान खानी, फातिह खानी और देखभाल करने लगे। मजीद अपडेट करेंगे पाकपतन से नुमाइंदा ऑन न्यूज़ मियां अहमद खान बट्टू। जी बिल्कुल, पंजाब के दूसरे शहरों की तरह मुहर्रम हम के महीने का आगाज़ होते ही पाकपतन के कब्रिस्तानों की रौनकें भी बहाल होगी। शहरियों ने अपने प्यारों की कब्रों पर जाकर कुरान खानी की, फातिहा खानी की के साथ साथ कब्रों की देखभाल, मरम्मत और कब्रों की असर नौ तमीर भी करते हैं और कब्रों पर फूलों की पत्तियां भी डालते हैं। शहरी ने बताया कि हर साल मुहर्रम हम के महीने में हम कब्रिस्तान आते हैं और अपने प्यारों की कब्रों की देखभाल करते हैं। हाँ जी, चिराग शाह आए हैं जी कब्रिस्तान, उत्थे आदे बजुर्गों दी कब्रां लिंब रहे हैं,
हजूर पाक दे सदके सब ते रहम करे मौला करीम आदे हबीब दे सदके। असी सारे फुल पत्तियां भी पा रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, लिंब भी रहे हैं। और इमाम हसन दे हुसैन दे सदके सारा कुछ कर रहे हैं। जैसा कि शहरी ने बताया कि मुहर्रम उल हराम में कब्रिस्तान आने का सिलसिला हमारी साबिका रवायत में शामिल है और हम मुहर्रम उल हराम में कब्रिस्तान आकर अपने प्यार की कब्रों की देखभाल करते हैं। फूल और उनकी पत्तियां भी कब्रों पर डालते हैं। उनके इसाले सवाब के लिए कुरान खानी, फातिहा खानी भी करते हैं। मुख्तलिफ खाने बनाकर कब्रिस्तान में तकसीम भी करते हैं। कब्रां ते फुल भी पा रहा है जी, कब्रा भी लेप रहा है जी, और पानी भी सबील भी कर रहा है जी नाल, और बहुत अच्छी तरह ही कर रहा है जी। नाल फुल भी डाल रहे हैं जी, पत्तियां भी जी, बहुत अच्छी तरह। जी बिल्कुल, जैसे हमने जाना, हमारे कुछ बुजुर्ग हमारे के साथी ने हमें बताया कि हम अपने प्यारों की कब्रों पे आए लिपाई करने के लिए और तलावत कुरान पाक कर रहे हैं, और आज के हवाले हज़रत इमाम हुसैन के सदक़े से हमारे प्यारों की मग़फ़िरत हो जाए। और इधर और भी साथी जो हैं लंगर का इंतज़ाम किया हुआ है, पानी की छबील लगा रहे हैं। कैमरा टीम के साथ मियां अहमद खां वटू, ऑन न्यूज़ पाकपतन। कोट अद्दू मुहर्रम उल हराम का मरकजी जुलूस आस्ताना नज़र मुलंग का जुलूस दुरानी चौक में बरामद हुआ। जुलूस अपने रास्तों से होता हुआ टब्बा शहर इमाम बारगाह पर जुलूस में शामिल होगा। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। जुलूस तमाम रास्ते खारदार तारों से सील किए हुए हैं। वज़ीराबाद के मरकजी और कदीमी जुलूस बरामद होकर अपनी मंजिल की तरफ रवां हैं। जुलूसों में अज़ादारों की बड़ी तादाद, जिनमें बच्चे बड़े जवान शामिल हैं, शिरकत कर रहे हैं। जुलूसों के दाखिली और खारजी रास्तों को खारदार तारों की मदद से बंद किया गया है और तलाशी के बाद जुलूस में दाखिल होने की इजाज़त दी जा रही है। मरकजी जुलूस अपने मुकर्ररा रास्तों मसमन ब्रिज, सर्कल रोड, रेल बाजार और गली शीशावाली से होते हुए लाहौरी दरवाज़ा कचहरी चौक पहुँचेंगे। जुलूसों की बरामदगी से कबल फलसफा शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बयान किया गया। तीनों जुलूसों के सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। पुलिस के जवान, महकमा सेहत, रेस्क्यू 1112, बम डिस्पोजल स्क्वाड, PTCL, वापडा, वार्डन पुलिस, सिविल डिफेंस और बल्दिया का अमला भी जुलूसों के साथ ड्यूटियां सरंजाम दे रहा है। तीनों जुलूस लाहौरी दरवाजे से इकट्ठे होकर मेन बाजार वजीराबाद में दाखिल होंगे और एक जुलूस की सूरत इख्तियार कर लेंगे। रात गए तीनों जुलूस वापस इमाम बारगाहों में पहुंचकर इख्तिताम पजीर होंगे और बादशाह मजालिस शाम गरीबा होंगी। महान सईदाबाद में भी योम अशाउर का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह अल हुसैनी जमाली कॉलोनी से निकाला गया, जिसमें जुलजना सेज दुल्हा शहजादा कासिम और झूला मासूम अली असगर अलैहिस्सलाम के ताज़े भी शामिल थे। मातमी जुलूस आज़ाद अली करता, दीदार जोयो, नदीम अब्बासी और दीगर की क़यादत में अपने रवायती रास्तों से होकर शाहानी चौक पर पहुंचा, जहां सीना ज़नी की गई। नमाज ज़ोहरैन के बाद जंजीरों का मातम किया गया, जिसमें 200 से ज़ायद अज़ादार ज़ख्मी हुए, जिनको तिब्बी इमदाद फ्राहम की गई। शहर के मेन चौक पर मातमी जुलूस नहर हो गया। बाद में मजलिस अज़ा मुनक्किद की गई, जिसमें इलामा फ़िदा हुसैन यज़दानी ने शोहदाए करबला की अजीम कुर्बानी पर उनको खराज तहसीन पेश किया। आखिर में मोमिनीन में लंगर न्याज भी तकसीम किया गया। मातमी जुलूस के दौरान SHO भान सईदाबाद मजहर हुसैन नाइट, स्पेशल ब्रांच इंचार्ज मोहम्मद यूसुफ जुल्बानी और DIB इंचार्ज दीदार बलोच की क़यादत में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। लालू रायनक पूरे मुल्क की तरह लालू रायनक शहर में भी मुहर्रम उल हराम से शहर के मुख्तलिफ इमाम बारगाहों से मातमी जुलूस निकल चुके हैं। ये जुलूस मगरिब तक लालू रायनक शहर के मेन बस स्टैंड पर पहुंचेंगे और हज़ारों की तादाद में अज़ादार मातम अज़ादारी करेंगे। लालू रायनक में स्टॉप पर मजलिस से खिताब होगा, जिसके सारे इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। शहर के अंदर दाखिली और खारजी रास्तों पर पुलिस के जवानों को हाई अलर्ट कर दिया गया है और शहर की तरफ आने वाले सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं। जिस जिस रास्ते से जुलूसों का गुजर होगा, हर रास्ते में पानी की सबीलें लगाई गई हैं। पूरे मुल्क की तरह मुरीदके के शहर नारंग में भी शहदाए करबला को सलाम अकीदत पेश करने के लिए मुख्तलिफ मकामात पर अलमे जुलजना ताज़िये के जुलूस बरामद हो रहे हैं, जिसमें पानी, शरबत, दूध और चाय की सबीलें लगाई गई हैं। हसास इलाका होने की वजह से सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। नारंग मंडी में 10 मुहर्रम का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह कसरे अब्बास से बरामद होकर रेलवे रोड से होता हुआ रेलवे स्टेशन की तरफ गामजन है, जहाँ सैकड़ों की तादाद में अज़ादार हुसैन जुलूस में शामिल हैं और गमे हुसैन में निढाल दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं और रेस्क्यू 1112 और हेल्थ डिपार्टमेंट का अमला फुल अलर्ट दिखाई दे रहा है।
सियालकोट में योम आशूरा के 87 रवायती और लाइसेंसी जुलूस बरामद। 10 मुहर्रम के जुलूस और मजालिस की फुल प्रूफ सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी आयद की गई। तमाम जुलूसों और मजालिस की निगरानी बजरिया CCTV कैमरा की जा रही है। मजीद जानते हैं वहाँ पर मौजूद ब्यूरो चीफ वहीद अहमद से। जी वहीद, बताइएगा। जी, सियालकोट योम आशूरा के 87 रवायती और लाइसेंसी जुलूस हैं वो बरामद होंगे। पहला जुलूस जो है वो दर बतूल अड्डा पसरूड़ियाँ से बरामद होगा, जबकि दूसरा बड़ा मरकजी जुलूस जो है वो मिस्री अब्दुल्ला से बरामद होकर अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा है। ये दोनों जुलूस जो हैं वो शामिल होकर अपनी रास्ते अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा है, जिनकी CCTV कैमरों के साथ जो है निगरानी की जा रही है। जुलूस की जो सिक्योरिटी है वो हाई अलर्ट की गई है। जबकि मैं आपको ये बताता चलूँ कि पुलिस एहलकार जो है ना वो ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। 2000 के करीब जो है ना पुलिस अफसरान और पुलिस एहलकार जो हैं वो ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। मैं आपको जबकि बताता चलूँ कि जुलूस की दाली हारजी रास्तों पर जो है ना वो हारदार तारे लगाकर कनात लगाकर बंद किया गया है, जबकि रेस्क्यू 1122 की टीमें जो हैं वो भी तैनात की गई हैं। जी, भान सईदाबाद में जमाते अहले सुन्नत की तरफ से जामे मस्जिद लोहार में शोदा करबला कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई, जिसमें बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। शोदा करबला कॉन्फ्रेंस में मशहूर आलम दीन अल्लामा मोहम्मद आलम नईमी, मुफ्ती खलील अहमद जान विहारनी, अल्लामा मोहम्मद माशूक मुजद्दिदी, मौलाना गुलाम महिउद्दीन अतारी और दीगर ने खिताब करते हुए कहा कि करबला में हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके साथियों ने इस्लाम की सरबुलंदी के लिए अजीम कुर्बानियाँ दी, जो ता क़यामत याद रखी जाएंगी। उन्होंने कहा कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हक़ की राह में अपनी जान कुर्बान कर दी, लेकिन बातिल के सामने अपना सर न झुकाया, जो कि आलम इस्लाम और मुसलमानों के लिए एक सबक है। बात शामिल करते हैं कंबर से। मुल्क भर की तरह 10 मुहर्रम के हवाले से ज़िक्र हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की महफिल हर साल की तरह इस साल भी दरगाह आलिया हुसैनाबाद कंबर शरीफ में मुनक्किद हुई। खबर के मुताबिक हर साल की तरह 10 मुहर्रम हराम के हवाले से होने वाली ज़िक्र हुसैन महफिल हुसैनी जमात के बानी सैयद सादात पीर सैयद गुलाम हुसैन शाह बुखारी अलमारूफ कंबर वाले साईं की ज़ेर सिदारत दरगाह आलिया हुसैनाबाद कंबर शरीफ से मुनक्किद हुई। महफिल में शरीक सिंध बलोचिस्तान से आए हुए उलमा इकराम ने हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ज़िंदगी पर रोशनी डाली। इस महफिल में पाकिस्तान भर से आए हुए कसीर तादाद में आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले बैत के हक़दारों ने बड़ी तादाद में शिरकत करके गमे अहले बैत में आंसू बहाए। पूरे मुल्क भर की तरह आज सेवन शरीफ और भान सईदाबाद यूबक सलसी में भी 10 मुहर्रम हराम आशूर का जुलूस मरकजी इमाम बारगाह से बरामद हुआ। जुलूस में अलम पाक जुलजना समेत दीगर ज़ियारतें शामिल हैं। जुलूस में शामिल अज़ादार नोआ खानी करते हुए सीना जनी करने के साथ या हुसैन की सदाएं बुलंद करते रहे। जुलूस की सिक्योरिटी के लिए इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। रेंजर्स एहलकारों के साथ पुलिस के एहलकार जुलूस के साथ साथ चल रहे थे और जुलूस में अज़ादारों की सख्त जामे तलाशी के बाद उन्हें जुलूस में शामिल होने दिया जा रहा था। जुलूस में शामिल अज़ादार जंजीरों का भी मातम कर रहे थे। शब आशूर का जुलूस अपने मुकर्रर रास्तों से गुजरते हुए सैयद हाजन शाह इमाम बारगाह में पहुंचे। वहां मजलिस अज़ा बर्पा की गई। उसके बाद शब आशूर का जुलूस रवायती रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह पीरल शाह इमाम बारगाह पहुंचकर इख्तिताम पज़ीर हो गया। पूरे मुल्क की तरह आज कंबर में भी योम आशूर बड़े अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। आइए देखते हैं कंबर से हमारे ऑन न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर अब्दुल हकीम चांडियो की ये रिपोर्ट। आराम से मनाया जा रहा है। अज़ादार मोमिन की जानिब से नंगर न्याज का एहतमाम किया गया है। शहर के मेन चौक चौराहों पर सबीलों का भी बंदोबस्त किया गया है। छोटी बड़ी इमाम बारगाहों से मातमी जुलूस निकाले जा रही हैं, जो मरकज़ी हुसैन इमाम बारगाह पहुँचना शुरू हो गए हैं। मरकज़ी मातमी जुलूस सैयद ज़ुल्फ़िकार अली शाह सैयद मुजाहिद हुसैन शाह की सरबराही में अलम पाक जुलजना ताज़ीन आज़ादारी के साथ शुरू होगा। मरकज़ी मातमी जुलूस मुख्तलिफ रास्तों से गुजरता हुआ कलराई मौला में मौजूद बनाए गए करबला के मैदान पर इख्तिताम पज़ीर होगा, जहाँ पर शाम गरीबा बर्पा होगी और आज़ादार मोमिनीन में नंगर न्याज तकसीम किया जाएगा। बात अगर सिक्योरिटी की जाए तो ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से 2200 पुलिस एहलकार मुकर्रर किए गए हैं, जबकि रेंजर्स के नौजवान एहलकार भी हिफाजती इंतज़ाम को संभालते हुए नज़र आ रहे हैं। अब्दुल हकीम चांडियो ऑन न्यूज़ कंबर। जी, खबर शामिल करते हैं तौसा शरीफ से। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद उमर इस्माइल रन की रिपोर्ट के मुताबिक 10 मुहर्रम हराम तौसा में मजालिस और जुलूस सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। तौसा शरीफ मरकजी जुलूस के मौका पर शहर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। जुलूस की गुजरगाह और इतराफ की गलियों और सड़कों पर सिक्योरिटी के लिए पुलिस एहलकार तैनात किए गए और जुलूस की CCTV कैमरों से भी मॉनिटरिंग की जा रही है। सर्कल तौसा के तमाम जुलूस और मजालिस की सुपरविजन ASP सर्कल तौसा शरीफ में रोहल खान कर रहे हैं, जिन्होंने 10 मुहर्रम हराम के रूट्स का विजिट किया और तमाम तब सिक्योरिटी ड्यूटी का जायजा लिया। इस
इस मौका पर ASP सर्कल तोंसा शरीफ मीर रोहल खान ने कहा कि तोंसा पुलिस ने मशकूक अनासिर और सरगर्मियों पर नजर रखने के लिए शहर में गश्त बढ़ा दिया है और खुफिया दस्ते भी काम कर रहे हैं। मजालिस और जुलूस के दौरान कमांडो सिक्योरिटी की खिदमत भी हासिल की जा रही हैं। कोट अदू से महरूम राम के हवाले से क्या तफसीलात हैं? कोट अदू महरूम राम का मरकजी जुलूस अपने मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ रेलवे चौक पहुंच गया, जहां ज़ायरीन ने सीना कुबी और जंजीर जनी का मातम किया। बच्चे बड़े सब गमे हुसैन में मुब्तला हैं। रास्ते में सबीलें लगाई गई हैं। अब रुख करेंगे पाकपतन का, जहां पर बरसगीर पाको हिंद के अजीम सूफी बुजुर्ग ज़ुहदुल अंबिया हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर के 779वें उर्स मुबारक की तकरीबात इख्तिताम पसीर हुई। मस्जिदी दरवाजे को 1 साल के लिए बंद कर दिया गया, जबकि नूरी दरवाजे हज़रत मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सोग में 40 दिन के लिए बंद कर दिया गया। मज़ीद अपडेट करेंगे पाकपतन से नुमाइंदा ऑन न्यूज़ मियां अहमद खान मट्टू जी बिल्कुल, हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के 789 उर्स की 15 रोज़ा रसूमात मुकम्मल हुई। आखिरी रस्म अदा करते हुए सजादा नशीन दीवान मदूद मसूद चिश्ती ने हज़रत बाबा फरीदुद्दीन के मज़ार को गुस्ल दिया और मुरीदैन और क़िदतमंदों में तबरक़ात लंगर तकसीम किया और बहश्ती दरवाज़ों को 1 साल के लिए बंद कर दिया गया, जबकि नूरी दरवाज़े को हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सोग में 40 दिन के लिए बंद कर दिया गया। कैमरा टीम के साथ मियां अहमद खान मट्टू न्यूज़ पाकपतन। अब खबर शामिल करते हैं बंगला गुगीरा से, जहां हमारे नुमाइंदे राशिद अली की रिपोर्ट के मुताबिक आज 10 मुहर्रम हराम नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और उनके साथियों जानिसार साथियों की अजीम कुर्बानियों की याद में मुल्क भर की तरह बंगला गुगीरा में भी 10 मुहर्रम का मरकजी जुलूस कच्चे इमाम बारगाह से बरामद हुआ। जुलूस की क़यादत सैयद इतराफ़ शाह ज़ैदी, सैयद मोहम्मद अवैस शाह ज़ैदी कर रहे हैं। जुलूस मेन बाजार से होता हुआ जामिया मस्जिद कोसिया के पास क़याम पसीर होगा। दूसरा बड़ा जुलूस जो कि पक्के इमाम बारगाह से बरामद होता हुआ मस्जिद के पास आएगा और दोनों जुलूस इकट्ठे हो के आगे हाजी चौक से गुजरते हुए धोबी बाजार में आएंगे। और जहां तक सिक्योरिटी की बात की जाए तो जनाब DPO फैसल शहजाद के हुक्म की तामील करते हुए बंगला गुगीरा SHO जावेद अख्तर खान बहुत भारी यूनफरी के साथ अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। और RHC के इंचार्ज डॉक्टर मंशा अपनी पूरी टीम डॉक्टर के साथ दोनों जुलूसों को ट्रीटमेंट कर रहे हैं। जुलूस में कसीर तादाद में अज़ादारों ने शिरकत करने के साथ साथ नोहाखानी और सीनाजनी भी करते रहे। किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए जुलूस के दाखिली और खारजी रास्तों पर पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई है। जुलूस के रास्तों पर सिक्योरिटी को हाई अलर्ट किया गया है। जुलूस के मुतल्लिका रास्तों पर खारदार तारे और कनाते लगाकर बंद कर दिया गया था। जुलूस अपने रवायती रास्तों से होता हुआ मरकजी इमाम बारगाह पहुंचकर इख्तिताम पसीर हुआ, जबकि मातमी जुलूस के रास्तों पर हर जगह पर पानी की सबीलें लगाई गई थीं। जुलूस की क़यादत सैयद पीर इतरत शाह ज़ैदी, पीर सैयद अवैस शाह ने की। जुलूस में हर तरफ या हुसैन की सदाएं बुलंद रहीं। हमारे नुमाइंदे राशिद अली वहाँ मौजूद हैं। जी राशिद अली बताइएगा। इस वक्त मैं बंगला गुगेरा में मौजूद हूँ, जहाँ पे हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और उसके जानिसार साथियों की कुर्बानियों के हवाले से आज 10 मुहर्रम अल हराम को बंगला गुगेरा में मरकजी जुलूस निकाला जा रहा है। मेरे पास इस वक्त मोहम्मद अवैस ज़ैदी साहब मौजूद हैं, जो हमें बताएंगे कि सिक्योरिटी के हवाले से क्या इक़दाम किए जा रहे हैं पुलिस के हवाले से, और उसके बाद हमारे पास जो जुलूस निकलेगा वो किस रास्ते से होता हुआ जाएगा और कौन सी इमाम बारगाह में आके क़याम पजीर होगा। मेरे पास इस वक्त मोहम्मद अवैस ज़ैदी साहब मौजूद है, जो हमें बताएंगे। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। इमाम बारगाह कस्रे आली इमरान से 10 मुहर्रम हराम का मरकजी जुलूस बरामद होगा और मेन बाजार के चौक में 1 घंटे की तकरीर होगी और वहाँ से जाके मेन बाजार से देखो वापस इमाम बारगाह कस्रे आली इमरान में तकरीबन 8 बजे काम पजीर होगा। आज के हवाले से 10 मुहर्रम हराम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी, ये 1,24,000 पैगंबर और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहनत का जो सारी कायनात में नाबे आदम से लेके खातमुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहनत का जो समर था, वो करबला में मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने 72 जानिसारों को कुर्बान करके उसको बचाया है। मौला पाक ने एक हक के सामने बातिल के सामने अपने हक का कलमा बुलंद फरमाया और अपने बेटे, अपने भाई, अपने भतीजे, अपने दोस्त अहबाब को कुर्बान किया है। अल्लाह पाक की तौहीद के लिए
और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत को बचाने के लिए। तो ये एक खराज तहसीन है जो हम करबला वाले शहीदों को पेश करते हैं। सालाना हर साल 10 मुहर्रम हराम को तमाम अज़ादार करबला, तमाम अहले इस्लाम, तमाम मुसलमान, तमाम मोमिनीन बारगाह नबूवत में अपनी मोहब्बत का ये सबूत पेश करते हैं कि हम आले मोहम्मद के साथ हैं और यजीद के मुखालिफ खड़े हैं। सर, सिक्योरिटी का जो है वो आपके साथ क्या अमल दरामद है? सिक्योरिटी के हवाले से बताएं कि किस कदर आपके साथ सिक्योरिटी है? माशाअल्लाह गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने और पंजाब पुलिस ने और डिस्ट्रिक्ट पुलिस DPO साहब ने हमारे साथ बहुत अच्छा ताउन किया और सिक्योरिटी पर्पज़ के हवाले से तमाम इक़दाम बहुत अच्छे फरमाए गए। जी ठीक। और उसके जान निसार साकिर की कुर्बानियों की याद में आज बंगला गुगेरा में मरकजी जुलूस निकाला जा रहा है। 10 मुहर्रम और हराम के मौके पर मेरे पास इस वक्त डॉक्टर साहब मौजूद है बंगला गुगेरा के RSC के, जो कि हमें बताएंगे कि इन्होंने अपनी टीम के साथ क्या इक़दाम किए। अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने हॉस्पिटल की पूरी टीम लेकर यहाँ पहुँचे हुए हैं। पहले जो मरकज़ी इमाम बारगाह से एक बूथ जो है वो वहाँ पर योजना बरामद हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह आप पूरी खिदमत लेकर आए हैं। अभी जुलूस आगे मूव कर रहा है। अब हम इस जुलूस के साथ यहाँ पे सर्विस जितनी भी सर्विस की हमारी वफर मकदार में दुआइयाँ और हमारा अमला मौजूद है। यहाँ से फिर जुलूस आगे मूव करेगा। शाम तक चलता रहेगा। हमारी टीम इंशाअल्लाह आप देख रहेगी हर तरह की है उसके कितने यहाँ के आपके कितने मेंबर्स हैं जो आपके साथ काम कर रहे हैं और कितने इमाम बारगाह के कितने लोग आपने वहाँ पे? हमारे पास टोटल 4 डॉक्टर हैं। 2 डॉक्टर उस टीम के साथ हैं, 2 इस टीम के साथ हैं और तकरीबन 15 लोग उस टीम में कर रहे हैं इस टाइम और 7 लोग वॉलंटियर भी हमारे साथ काम कर रहे हैं। इस तरह हमारे चल रही 20-25 उसके साथ साथ चल रही है। एम्बुलेंस रेस्क्यू हमारे साथ कर रही है और बिल्कुल ठीक काम कर रही है। खबर शामिल करते हैं रहीम यार खान से। हमारे नुमाइंदे सरदार जामरम नवाज की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर की तरह जिला रहीम यार खान के नवाई इलाके तरंडा सवाई खान में भी 10 मुहर्रम हराम के हवाले से इमाम बारगाह सजादिया बाखरिया में मजलिस अज़ा मुनक़िद हुई। अज़ादार हुसैन नोहा खानी मातम जनी और जंजीर जनी और सीना कुबी करते रहे। रहीम यार खान मुल्क भर की तरह ज़िला रहीम यार खान के नवाही इलाका तरंडा सवाई खान में भी 10 मुहर्रम हराम के हवाले से इमाम बारगाह सजादिया बाखरिया में मजलिस अज़ा मुनक़िद हुई। नवासे रसूल इमाम हुसैन को पुरसा देने के लिए छोटे बड़े शहरों से अज़ादार हुसैन मजलिस अज़ा में शामिल हो रहे हैं। अज़ादार हुसैन नोहा खानी मातम जनी जंजीर जनी और सीना को भी कर रहे हैं। जी जैसा कि पूरी कायनात जानती है कि आज यौम अशूर है। ये वो दिन है जब हक़ और बातिल आपस में टकराए और यकीनन फ़तह जो हुई वो हक़ की हुई। ये वो दिन है जब एक नवासे रसूल ने एक ना हमवार और ना बराबरी वाला मुकाबला करके बता दिया कि हक़ बेशक थोड़ा हो लेकिन उसकी जीत हमेशा उसी की होती है। और उसको ये पुरसा देने के लिए, उसकी याद को मनाने के लिए ये तमाम मोमिनीन बच्चे जो यहाँ खड़े हैं, इन्होंने उनके नाम पर अपना खून भी बहाया है और ये याद दिलाया है कि इस दिन बातिल क़ुव्वतों ने एक हक़ की क़ुव्वत के साथ टकरा कर उसका नाहक खून बहाया था। आज हम उनकी याद में खून बहाया। मजलिस अज़ा में ज़ाकिर अहल बैत सैयद नदीम ताहिर शाह ने शान हुसैन बयान किया। अज़ादारों के लिए जगह जगह लंगर हुसैनी और सबीलों का सिलसिला भी जारी है। लोग अपनी मानते मुरादें भी मांग रहे हैं। अगर बात की जाए सिक्योरिटी के हवाले से इंतजामिया की तरफ से जुलूस की सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। कैमरामैन मोहम्मद सादिक जामराब नवाज ऑन न्यूज़ रहीम खान। खबर शामिल करते हैं ननकाना साहिब से। मुल्क भर की तरह ननकाना साहिब में भी योम आशूर इंतहाई अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। पूरे ननकाना साहिब में जगह जगह न्याज तकसीम की गई और पानी की सबीलें लगाई गई। खासकर अल खिदमत फाउंडेशन ननकाना साहिब ने भी अपनी रिवायात को बरकरार रखते हुए 5000 ठंडे और मीठे पानी की डिस्पोजेबल बोतलें मातमी जुलूस में तकसीम की गई। जुलूस अपने रिवायती मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ हुसैनी बाग में इख्तिताम पजीर हुआ।
अब रुख करते हैं बहावल नगर का। थाना सिटी ए डिवीजन बहावल नगर के ASI रिजवान अब्बास की मुनशियात फरोशों के खिलाफ एक और शानदार कार्रवाई। 377 बोतल वलायती शराब बरामद। जिला भर में बड़े पैमाने पर होने वाली सप्लाई नाकाम। मुलजिम गिरफ्तार। अवामी समाजी और सहाफती हलकों का ASI रिजवान अब्बास को शानदार कार्रवाई पर खराज तहसीन। तफसीलात के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर बहावल नगर मोहम्मद जफर गुजार की हिदायत पर ज़िले पुलिस मुनशियात फरोशों के खिलाफ कामयाब कार्रवाई में मसरूफ़ हैं। DSP सदर सर्कल अमजद जावेद की सरबराही में SHO थाना सिटी ए डिवीजन सैफुल्लाह हनीफ ने रिजवान अब्बास ASI के हमरा मुनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जावेद मसीह वल्द रफ़ीक मसीह सकना मोहल्ला मोमिनपुरा दरोगा वाला लाहौर को कार में विलायती शराब सप्लाई करते हुए पुल फोर्ड डावा आरिफ वाला रोड से गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के कब्जा से 370 बोतल वलायती शराब बरामद कर ली। दौरान तफ्तीश मुलजिम का जिला भर में वसी पैमाने पर शराब फरोख्त करने का इंकशाफ। मुलजिम को पाबंदे सलासल करके मुकदमे का इंदराज कर लिया गया। मजीद तफ्तीश जारी है। इस मौका पर DPO मोहम्मद जफर गुजार का कहना था कि मुनशियात फरोश हमारी नौजवान नस्ल को नशे की सूरत में जहर सप्लाई कर रहे हैं। DPO ने मजीद कहा कि शहरियों के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की अवलीन तरजीह है। जिला बहावल नगर को जराइम और मुनशियात से पाक करने का अज़्म कर रखा है। आवाम को भी चाहिए कि जराइम पेश अफराद से मुतल्लिक इत्तला देकर पुलिस का साथ दें। खबर शामिल करते हैं मरी से हमारे नुमाइंदे खसूसी राजा वकास नवाज के मुताबिक मोरखा 10 अगस्त को पेश आने वाले वाक़े में ज़ख्मी होने वाले अदीब अब्बासी के मुलजिमान ताहाल गिरफ्तार नहीं हो सके, जबकि अदीब अब्बासी को टांग में राड़ डाला गया है। ये वाक़या नकरा मोड़ नज़ मोटरवे पर पेश आया था, जो कि डकैती की वारदात थी, जिसमें मुलविस अली नामी शख्स गिरफ्तार हो चुका है, जबकि बाकर नामी लड़का और 4 नामालूम अफराद ताहाल गिरफ्तार ना हो सके हैं। बाकर का ताल्लुक देवल से है। पहले ये बताया गया था कि अली और बाकर का ताल्लुक GSF से है, लेकिन बाद में वहाब नामी शख्स ने बताया कि GSF को वो चलाता था, लेकिन गुज़िश्ता 2 साल से GSF नामी तंजीम को ख़त्म कर चुका है और अब GSF नामी की कोई तंजीम ही नहीं। हमारी पुलिस के आला हुकाम MNA और MPA और दीगर तमाम इदारों से अपील है कि जल्द अज जल्द अदीब अब्बासी के मुलजिमान को गिरफ्तार किया जाए। बसूरत दीगर GT रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया जाएगा और ताहाल गिरफ्तारी रोड को नहीं खोला जाएगा। सबसे पहले खबर शामिल करते हैं हारून आबाद से। हारून आबाद में 10वें मुहर्रमुल हराम का मातमी जुलूस मरकज़ी इमाम बारगाह से बरामद होकर रिवायती रास्तों पर गामज़न। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात जुलूस से मुल्हिका रास्तों को रुकावटें लगा के बंद कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक हारून आबाद में 10वें मुहर्रमुल हराम का मातमी जुलूस मरकज़ी इमाम बारगाह से बरामद हो गया। मरकज़ी जुलूस रिवायती रास्तों पर गामज़न। पुलिस की जानिब से सख्त सिक्योरिटी के इंतजामात किए गए हैं। जुलूस से मुल्हिका रास्तों को रुकावटें लगा के आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया गया। DSP सर्कल हारून आबाद गुल हसन, असिस्टेंट कमिश्नर चौधरी मोहम्मद तैयब और SHO थाना सिटी अबसार हुसैन गुज्जर, SHO सदर चौधरी मोहम्मद बशीर और SHO फकीर वाली आबिद हमीद और सिक्योरिटी ब्रांच और सिविल डिफेंस की सरबराही में पुलिस अहलकार जुलूस के हमरा हैं और पुलिस की निगरानी कर रहे हैं। 10वें मुहर्रमुल हराम का जुलूस मरकजी इमाम बारगाह से बरामद होकर अपने रिवायती रास्तों अकब जेल रोड, फवारा चौक रोड से होता हुआ फवारा चौक पहुँच चुका है, जहाँ अज़ादरान नमाज ज़ोहरीन अदा करेंगे और मजलिस अज़ा होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहर्रम अल हराम का जो मरकज़ी जुलूस है 10 मुहर्रम अल हराम को इस वक्त मरकज़ी इमाम बारगाह से बरामद हो चुका है। जुलूस की सिक्योरिटी के लिए प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। जो भी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से जो सिक्योरिटी की SOPs जारी की गई, जो DP साहब की तरफ जो इंस्ट्रक्शन हैं उसके मुताबिक जो है सिक्योरिटी के इंतजाम को इंश्योर किया गया। जुलूस के रास्ते में आने वाले तमाम रूट्स को कंटेनर्स और खारदार तारों से ब्लॉक कर दिया गया है और पूरी कोशिश है कि जिस तरह इससे पहले जो है ना जुलूस बड़े अच्छे तरीके से बड़े मुनज़्ज़म अंदाज से इसको जो है ना सिक्योर करके बाहिफाज़त वापस पहुँचाया जाता है। इसी तरह जुलूस को इंशाअल्लाह ताला इस साल भी कोशिश होगी आज से पहुँचाया जाए। थैंक यू।